So very good morning dear student. Welcome back once again in a today's science class. So I hope everybody you guys are enjoying this online classes, and also you are continually you are busy or doing your work properly. So dear student, if you remember that in a previous class we discussed a very most important the one phenomena, that is water corrosion or rusting. So as we discussed in the previous class, this corrosion or rusting is what? It's a process of formation of a layer on the surface of any metallic object. In that we discuss about this rust is nothing but it's a water oxide of iron, that is Fe2O3 X amount of molecules of water present. So when this air and moisture or water is reacted with the iron, it forms its oxide, this iron oxide, that is become a brown in color. So it forms one layer on the metallic surface, that is called water rusting. So in that we discuss some the way by which some methods, some techniques by which we can protect मेटल और दिस आयरन गेटिंग रस्ट मीन्स ऐसे कुछ टेक्निक्स, ऐसे कुछ मेथड्स हमने डिस्कस किए थे जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते थे, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते थे. वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग. So in that we discuss about the painting, greasing, oiling, and then we discuss some technical process or technical methods. In that we discuss galvanization. Galvanization means what? A layer of zinc is created on the surface of a matter is called what? Galvanization. It simply we form one layer or the layer of the zinc on the other matter. Then we discuss the electroplating, by which we can form a layer on the metals by what? By the passing the electric current or electricity. And then last we discuss about the alloy, means we mix two metals or metals, two or more metals or a non-metal in a fixed ratio, in fixed proportion. So by that we forms advanced type of some develop more the matter which have its characters which makes it this rust free or resistance. It makes the matter which have the more power or which have a more resistance against this rust. Okay, so here the things is that कि इनमें सबसे मोर इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि किसी भी तरह से हमें उस मॉइस्चर्स को और एयर को या वाटर को उस मेटल के टच में आने से, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हमें बचाना है. यानी इनके बीच में किसी भी तरह से इफ़ वी वांट क्रिएट द लेयर, एक लेयर किसी तरह से अपन क्रिएट कर ले ताकि उन दोनों को वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचा सके, तो हम रस्टिंग को या फिर corrosion को रोक सकते हैं. So I hope you that the topic is clear for everyone. Now in today's class we are going to start the new topic that is called crystallization. Crystallization, it is the technique or it is the method or phenomena by which we can obtain or we can get the water, the pure form of substance in a form of crystals. यानी ये एक ऐसा मेथड है, ऐसा टेक्निक है, ऐसा फिनोमेना है जिसके द्वारा किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म अपन प्राप्त कर सकते हैं. और वो प्राप्त फॉर्म जो होती है वो किस फॉर्म होती है? क्रिस्टल के फॉर्म होती है. क्रिस्टल इज नथिंग बट इफ़ यू ऑब्जर्व लाइक शुगर, यदि आप घर में शुगर देखते हो तो शुगर के जो दाने होते हैं तो वो एकदम से क्या है? क्रिस्टल्स है. जस्ट लाइक चॉक के पाउडर को आप उसका पाउडर बना दोगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे दैट इज क्रिस्टल. इफ यू टेक सम पीस ऑफ दिस ग्लास, कांच का टुकड़ा लेगा और उसको बिल्कुल पीस लोगे तो बारीक बारीक उसके जो दाने होंगे वो क्रिस्टल है. तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन इज अ टेक्निक और इट्स अ प्रोसेस इन विच द क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम a solution of a pure substance. Crystallization is nothing but is a process or phenomena or method by which we form water crystals.
क्रिस्टल्स के फॉर्म में बनाते हैं। और क्रिस्टल इज वाटर, क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। कोई भी प्योर सब्सटेंस होता है, क्रिस्टल इज ए प्योर फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, and the method by which we form that crystal is called water crystallization. So crystallization is a very simple, we can define it like that. It is a process by which we can form the crystal from a solution of a pure substance. यानी क्रिस्टल बनाने की वह प्रोसेस जिसमें किसी भी प्योर सब्सटेंस से, किसी भी प्योर सब्सटेंस से अपन उसके क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो वो मेथड जो है, प्रोसेस है, वो कहलाता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, यानी इफ वी आर टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक बीकर है, उस बीकर के अंदर इफ वी आर टेकिंग वन बीकर लाइक दैट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें अपने H2O प्लस CuSO4, ओके, इसको मिला के बना के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया। सपोज दैट, तो ये जो होता है कॉपर सल्फेट, अब कॉपर सल्फेट ले लिया, उस कॉपर सल्फेट का जो पाउडर होता है उसको पानी के साथ में मिक्स करके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया, और उसको फिर अपन गर्म करेंगे तो उसके जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो आपके क्या होंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होंगे। तो इस मेथड के द्वारा अपन किसी भी प्योर सब्सटेंस से उसके क्रिस्टल्स बना सकते हैं। सो नाउ यू सी एट द पेज नंबर 77 we more discuss about this crystallization. You might have observed the sugar granules, as I told you that आपने घर पे देखे होंगे शुगर के ग्रेनुअल्स, शुगर के दाने देखे होंगे आपने, बारीक से मिश्री देखी होगी ना, या फिर आपके कांच के टुकड़े को उसको ग्राइंड करके पीस के बिल्कुल, हाँ, या फिर सॉल्ट के जो है ना, सॉल्ट के ग्रेनुअल्स देखेंगे, तो वो सब क्या है, क्रिस्टल्स के एग्जांपल्स है। दीज आर द क्रिस्टल फॉर्म ऑफ एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल्स। हाउ डू दे लुक? If you closely observe them, each sugar granules has an identical geometric shape. यानी उसके सब ग्रेनुअल को आप दाने को देखोगे तो वो आप या तो क्यू के शेप में, स्क्वायर के शेप में, या फिर रेक्टेंगुलर शेप में आपको देखेंगे, यानी कि उनका फिक्स एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। मीन्स द क्रिस्टल्स हैव द फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप। These are called crystals. These granules are known as the crystals which have the same geometrical shape. In crystals the atoms are arranged in a regular pattern. यानी crystals के अंदर क्या होता है, in the crystals the atoms are what? The atoms are arranged in a regular pattern. Means in the crystals the atoms present in that crystals are arranged in a regular form or in a regular pattern. Hence they have the definite shape. इसी कारण से due to that they have the definite shape. फॉर एग्जाम्पल एलम, जिसको अपन फिटकरी कहते हैं, रॉक सॉल्ट है ना, सेंधा नमक जिसको कहते हैं, दे ऑल हैव व्हाट द कॉमनली द अकरिंग क्रिस्टल्स। ये क्या है, कॉमनली अकरिंग नेचुरल क्रिस्टल्स हैं। ओके, रॉक फॉस्फेट हो गया, हाँ, सेंधा नमक हो गया, या फिर जैसे एलम, पोटास जिसको या फिटकरी अपन कहते हैं ना। You can also see the blue copper sulfate crystals in the lab prepared by the solution of copper sulfate. यानी copper sulfate solution को आप स्टीयर करके हिला के उसको गर्म करते हैं, तो सॉल्यूशन को गर्म, उसके सेचुरेशन लेवल के तक गर्म करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, तो उससे क्या बनते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनते हैं। The crystals can be obtained from their solutions by the process of heating or the evaporation. Means crystals can be formed by the heating and evaporation of any solution or the copper sulfate solution in a laboratory. If we want to prepare the crystals of the copper sulfate solution, यदि हमें copper sulfate के crystals बनाने तो copper पाउडर लोगे, एक बीकर में पानी लोगे, जैसे 100 ml में वाटर लिया और उसमें कॉपर सल्फेट मिक्स किया और फिर उसको स्टीयर करके हिलाकर उसको गर्म करेंगे तब तक कि वो सेचुरेशन लेवल पे नहीं आ जाए, और उसके बाद उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। This process is called crystallization, means the process by which we form the crystals of this copper sulfate solution. Okay, copper sulfate solution से उसके copper sulfate के crystals बनाते हैं लैब में, तो this is called what? Crystallization. For instance, if we heat the sugar solution till all the water is evaporated. For example, एक और हमने sugar solution लिया है, यानी कि पानी ले लिया एक ग्लास के अंदर, बीकर के अंदर, और उसमें शुगर को मिक्स करके
उसको गर्म करते जाएंगे, तब तक गर्म कर जाएंगे तब तक जब तक कि उसमें से पूरा पानी इवोपरेट होके वेपर बन के उड़ नहीं जाए। और उसके बाद उसको यदि अपन ठंडा होने के लिए अलाउ कर देते तो इट फॉर्म्स सुगर क्रिस्टल्स। So we get crystals of sugar. Now here you can see that the one activity is given which is given here to form the crystals of water. It is used to form the crystals of copper sulfate. So now some materials are required for the formation of this crystals of copper sulfate. In that the distilled or pure water, dilute sulfuric acid, copper sulfate powder, or beakers or burner or stirrer. You can see in your textbook these all things are required. Means ये कुछ apparatus है और chemicals है जो हमें चाहिए। कैसे बनाएंगे? Take the 50 ml of distilled water in a beaker and add 2 drops of sulfuric acid. यानी कि बीकर ले लिया, उसके अंदर अपने 50 ml डिस्टिल वाटर ले लिया, शुद्ध पानी ना, फिर डिस्टिल वाटर, और उसके अंदर 2 ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 मिक्स कर दिया। हीट दिस सॉल्यूशंस ऑफ द बुसेंस बर्नर एंड कॉपर सल्फेट पाउडर टू इट, और उसको अपन गर्म करेंगे और उसके अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर जो है उसको मिक्स कराते जाएंगे और स्टीयर करके जाएंगे, हिलाते रहेंगे ग्लास रॉड से। Just you see this all the apparatus or arrangement in your textbook. Stir the solution and keep on adding the copper sulfate powder till no more it can be dissolved. यानी कि उसको हिलाते जाना है, स्टीयर करके जाता है उस जैसे ग्लास और उसमें पाउडर डालते जाना और हिलाते जाना और उससे आपको बर्नर से और कुछ ड्रॉप्स डालें, 2 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और फिर इसको स्टीयर करके जाना है। ठीक है, और स्टीयर कब तक करना है? जब तक कि उसमें जो है नो मोर ऑफ दिस कॉपर सल्फेट्स पाउडर इज मिक्सड, यानी वो डिजोल्व नहीं होने लग जाए। जब तक डिजोल्व होते जाए तब तक वो मिक्स करते जाना है। इट बिकेम्स सैचुरेटेड। फिर ऐसा एक लेवल आएगा कि जिसमें अपन और कॉपर सल्फेट पाउडर को मिक्स नहीं कर सकते, तो उस लेवल को कहेंगे सैचुरेटेड लेवल। नाउ फिल्टर दिस सॉल्यूशन एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर द 12 to 18 आवर्स। फिर इसको फिल्टर कर लेना बाय द यूज ऑफ फिल्टर पेपर, और 12 से 18 घंटे के उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसके